Total strength I think is 33. Total strength is 33. 31. 31. And out of 31, 22 have joined. It means still 9 are left. Okay, so first I'll take your attendance. Have you done homework? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. And I think only last exercise of this chapter is left. Am I right? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay, good. So today we will discuss first last exercise, and after completing this exercise, we will start new chapter. Okay? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. good. So any one of you tell, is screen visible? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. Okay. And my voice Yes, ma'am. and voice is clear? Yes, ma'am. Yes, Okay, ma'am. good. Now you all mute yourself. You all have to mute. In case of any doubt, you can unmute and ask your doubt. Okay? Chalo. So last exercise is based on the 6.3 is the last exercise of lines and angles. And this exercise is based on angle sum property of a triangle. And in my previous class, I have already explained what is the meaning of angle sum property of a triangle. Now, any one of you explain what do you understand by angle sum property of a triangle? Any one of you take initiative. Sum of all angles of triangle is 180 degree. Yes, good. Good, good. Now mute. This concept that where the sum of all three angles of a triangle is 180 degree, this concept is known as angle sum property of a triangle. Now, other than this property, there are two more properties. First one is angle sum property, and second one is you have already done this concept in 7th class. Suppose this is a triangle. This triangle is ABC. सबको मालूम है, you all know. This triangle is ABC, and this angle is known as Exterior angle. Exterior angle. Exterior angle. Exterior angle. एक्सटीरियर एंगल. यस, अब मैंने आपको 7th क्लास में एक्सटीरियर एंगल को बहुत अच्छे से समझाया था, इसकी बहुत बढ़िया हिंट दिया था. आज फिर से एक्सप्लेन कर रही हूँ, ध्यान से सुनना. If we extend any one side, how many sides are in a triangle? 3. AB, first side, BC, and then AC. AB, BC, AC, these are 3 sides. If we extend any one side, किसी भी एक साइड को एक्सटेंड करो. In this figure, I am extending this side BC. तो BC को मैंने एक्सटेंड कर दिया suppose till X. It means BX is an extended part और एक्सटेंडेड साइड ऑफ साइड BC. अब ध्यान से देखना, अब एक्सटेंडेड पार्ट और ये है आपका ओरिजिनल साइड AC. तो ये जो कॉमन वर्टेक्स है, जो C आपका कॉमन वर्टेक्स होगा, जो एक्सटेंडेड साइड और ओरिजिनल साइड का कॉमन वर्टेक्स है, यहाँ पर जो एंगल बनेगा वो होगा आपका एक्सटीरियर एंगल. और एक्सटीरियर एंगल मींस एंगल, जो भी एंगल बनाते हैं तो एंगल का एक आर्क होता है, मैंने आपको प्रीवियस क्लास में समझाया था. आर्क, angle is denoted by an arc and there are two end points of an arc. जैसे मैंने ये एंगल बनाया, ये इसको बोलते हैं आर्क. दिस इज नोन एज आर्क. ये फर्स्ट एंड पॉइंट हो गया, दिस इज सेकंड एंड पॉइंट. अब ये जो एक्सटीरियर एंगल का आर्क होगा, ध्यान से देखना जो ट्रिक समझा रही हूँ, वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसका वन एंड पॉइंट जो है वो टच करेगा एक्सटेंडेड साइड को, यानी एक्सटेंडेड साइड में एक एंड पॉइंट होगा. एंड सेकेंड एंड पॉइंट विल टच ओरिजिनल साइड. ओरिजिनल साइड मीन्स जिसको हमने एक्सटेंड नहीं किया, यानी AC को. और जो बीच का गैप होगा, दिस गैप, दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल. और इस एंगल को रीड कैसे करेंगे? एंगल ACX. और ये ACX जो एक्सटीरियर एंगल बना है, इट इज ऑन वर्टेक्स C. हमने C वर्टेक्स पे बनाया.
अब इसकी प्रॉपर्टी क्या है कि एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट एंगल्स, यानी ये जो एंगल सी है वो इसके एंगल ए प्लस एंगल बी के इक्वल होगा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू सम ऑफ टू इंटीरियर अपोजिट, वर्ड देखना ध्यान से, इंटीरियर अपोजिट। अब इंटीरियर एंगल्स कितने होते हैं ट्रायंगल में? 3, एंगल ए, एंगल बी एंड एंगल सी। बट आउट ऑफ 3 एंगल्स यू हैव टू टेक 2 इंटीरियर अपोजिट, यानी जो इस सी के अपोजिट में हो, यानी जिस वर्टेक्स में, बहुत आराम आराम से बोल रही मैं वर्ड टू वर्ड, जिस वर्टेक्स में एक्सटीरियर बनेगा उसका इंटीरियर नहीं लेंगे, ये वाला इंटीरियर नहीं लेंगे। तो ये एंगल इक्वल हो जाएगा दिस प्लस दिस। कहने का मतलब मान लो ये एंगल 40 है एंड दिस एंगल इज सपोज 60, तो 60 प्लस 40 100, ये एंगल हो जाएगा आपका 100 डिग्री। और सेम कॉन्सेप्ट आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो। कैसे आप हर जगह अप्लाई कर सकते हो? अभी मैंने किसको एक्सटेंड किया था? इस साइड को एक्सटेंड किया था। इफ यू एक्सटेंड दिस साइड, मान लो आपने इसको एक्सटेंड कर दिया AC को, जब AC को एक्सटेंड कर देंगे तो AC एक्सटेंडेड साइड, BC ओरिजिनल साइड, और दोनों के बीच का जो गैप हो गया, एक सेकंड, हाँ, गैप बिटवीन दीज टू ये हो जाएगा। और देखो एंगल के आर्क, आपको कॉन्सेप्ट क्या ध्यान रखना कि जो एंगल का आर्क है वो एक साइड टच करेगा एक्सटेंडेड, ही देखो कर्सर को ध्यान से देखो, एक्सटेंडेड एक साइड टच करेगा आपको किसको? ओरिजिनल साइड को, और बीच का गैप, ये एक्सटीरियर एंगल है। किस वर्टेक्स में है? सी का, ये वाला इंटीरियर नहीं लेंगे। दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, यानी जब हम इसको एक्सटेंड करते तो आपका रुझान, लेट मी चेंज कलर, तो आपका एक्सटीरियर एंगल ये बनता, और ये एंगल भी इक्वल होगा A प्लस बी के, ये भी किसके इक्वल होगा? A प्लस बी के। एंड दीज टू एंगल्स आर वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल्स कैसे बनते हैं? एंगल्स फॉर्म्ड बाय टू इंटरसेक्टिंग लाइंस। इन दिस केस विच टू इंटरसेक्टिंग लाइंस आर देयर? एक इंटरसेक्टिंग लाइन, इसको मैंने नेम दे दिया Y, AY एंड BX। AY और BX दो इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, इसलिए एक पेयर ये बनेगा वर्टिकली अपोजिट एंगल का, दूसरा पेयर ये इंटीरियर एंगल और ये बनेगा। तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा एंड दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल। ओके, दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? जल्दी बोलो फटाफट, फास्ट। Yes, ma'am. अब आप ध्यान देखो, अभी तो मैंने आपको सी में बता दिए दोनों एंगल, हर वर्टेक्स में दो दो एक्सटीरियर एंगल बन सकते हैं। ए में भी आप ऐसी दो बना सकते हैं, एक बार ए बी को एक्सटेंड कर दो तो ये बन जाएगा, इसको एक्सटेंड कर दो तो ये बन जाएगा, इसको एक्सटेंड कर देंगे, सॉरी ये मैंने गलत एक्सटेंड किया, इसको बिल्कुल स्ट्रेट करना है, ध्यान रखना, स्ट्रेट ऐसे होगा तो एक एंगल ये बन जाएगा, और इसको एक्सटेंड कर देंगे तो आपका एंगल ये बन जाएगा, और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल। तो कुल मिला के हर वर्टेक्स में दो दो एक्सटीरियर बनते हैं। अब ऐसे देखा जाए तो एक ही होता है क्योंकि आपस में इक्वल हो जाते हैं। दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. So you have to use, okay, good, mute कर लो। You have to use these two properties in this exercise, यानी आपका 90% क्वेश्चन बेस्ड होगा इन दोनों पॉइंट्स पे, और ये जो पैरेलल लाइंस वाला कॉन्सेप्ट बताया वो तो आपको यूज करना है। जब भी दो लाइंस पैरेलल होंगी कौन किसके इक्वल होगा, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन। ठीक है, आप चलो फटाफट एक्सरसाइज देख लो। वैसे देखा जाए कि सबसे सिंपलेस्ट चैप्टर है 9th क्लास का। क्यों सिंपलेस्ट? इसका रीजन देखो, यदि किसी को भी ध्यान हो, 7th क्लास में मैंने आपको हिंट दिया था कि आप 7th क्लास में लाइंस एंड एंगल्स बहुत अच्छे से करो बेटा, क्योंकि सेम 9th में भी है। याद है किसी को मैंने सेंटेंस बोला था? अच्छा सॉरी मैंने तो आपकी क्लास को पढ़ाया ही नहीं था, sorry. वो मैंने दूसरे सेक्शन को पढ़ाया था, उनको बोला था मैंने ये बात, क्योंकि 7th में सेम चैप्टर है, और मैंने आपको यही आपको मतलब आपके काउंट दूसरे सेक्शन को ये बात कही थी, सेम आएगा 9th में भी। ओके, नाउ कम टू दिस एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1। फर्स्ट क्वेश्चन इज इन फिगर, ये फिगर आपको गिवन है। अब एक चीज को और ध्यान रखना, लाइंस एंड एंगल्स में 90% फिगर आपको खुद बनाना होगा। हम इस तरह से क्वेश्चन को फ्रेम करेंगे, उसको देख करके यू कैन ड्रॉ फिगर। फिगर ड्रॉ करने का यू विल गेट हाफ मार्क, आपको फिगर ड्रॉ करने का मिलता है।
इसलिए ये ध्यान रखना कि क्वेश्चन को ध्यान से रीड किया करो, सोचो आप फिगर बना पाओगे कि नहीं। इन फिगर, अब जिसमें जनरली इन फिगर दिया रहता है तो 90 मतलब कुछ इंफॉर्मेशन डायरेक्ट दिखा देते हैं, बट हम कुछ एक्स्ट्रा ऐड ऐसा करेंगे कि आप आराम से फिगर बना सकते हैं। In figure, sides QP and RQ of triangle PQR are produced. Produced means extended. Produced and extended दोनों का मीनिंग सेम है। तो PQR एक ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल में QP और RQ को प्रोड्यूस यानी एक्सटेंड किया। QP मीन्स Q से P की तरफ। अच्छा हाँ, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट बेटा, ध्यान से देखना, यदि लिखा है QP और QP को एक्सटेंड करना है, यानी Q से स्टार्ट होगा और P की तरफ एक्सटेंड करना, Q से स्टार्ट होके P की तरफ एक्सटेंड करना, इधर एक्सटेंड होगा। यदि लिखा होता PQ इज प्रोड्यूस्ड, तो P से स्टार्ट करते और Q की तरफ एक्सटेंड करते। इज दिस कॉन्सेप्ट क्लियर? मैम। Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, तो ये ध्यान रखना बेटा कि Q से यदि स्टार्ट है तो Q आपका इनिशियल पॉइंट है और P की तरफ एक्सटेंड करेंगे। जैसे R is initial point and you have to extend in which direction? Q side। Q कहाँ पे, ये देखो Q इस साइड में एक्सटेंड करेंगे। यदि क्वेश्चन में लिखा होता QR means from Q to R, इस साइड एक्सटेंड। ठीक, चलो ये हो गया। टू अ पॉइंट S हो गया, एंड T रेस्पेक्टिवली इफ एंगल SPR 135, दिस इज 135, एंड एंगल TQP और PQT कैसे भी रीड कर सकते हैं, इक्वल्स टू 110 डिग्री, फाइंड एंगल PRQ। PR so this is 135, you can find this angle, this is 110, you can find this angle. Can you find these two angles? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Arya, by which property? Angle sum property. No. Linear pair. Linear pair. लीनियर पेयर प्रॉपर्टी कैसे लगा दोगे? लीनियर पेयर, मैंने आपको हिंट दिया था बेटा, ये स्ट्रेट लाइन, दिस इज एन स्ट्रेट लाइन, और स्ट्रेट लाइन में आपकी लाइन ऐसी जा रही, P, यहाँ पे P लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, ये एंगल 135 है। स्ट्रेट लाइन में टू एंगल्स का सम कितना होता है? 180 डिग्री। दिस इज 135 डिग्री, ये आप फाइंड कर सकते हो, कितना जाएगा? 45 डिग्री। दिस इज 110, दिस विल बी 70 डिग्री, फिर वही लीनियर पेयर। अब ये 70 मिल गई, ये 45 मिल गया। एंगल सम प्रॉपर्टी कब अप्लाई करते हैं? इफ इन एनी ट्रायंगल टू एंगल्स आर गिवन एंड यू हैव टू फाइंड थर्ड एंगल, देन यू हैव टू अप्लाई एंगल सम प्रॉपर्टी। कभी भी किसी ट्रायंगल में दो एंगल्स गिवन हो, कोई भी दो एंगल्स हो सकते हैं, एंड यू हैव टू फाइंड थर्ड वन, तब एंगल सम प्रॉपर्टी अप्लाई करना। किसी एक लाइन में वन एंगल इज गिवन एंड यू हैव टू फाइंड सेकंड वन, इट मींस यू हैव टू अप्लाई लीनियर पेयर। आप अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के थर्ड निकाल लोगे। सिंपल क्वेश्चन, एनीवन, एनी डाउट? मैम एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी भी तो लगा सकते हैं इसमें। बिल्कुल लगा सकते हैं, 100% लगा सकते हैं। 110 इक्वल्स टू, पहले एक को निकालना पड़ेगा बेटा, या तो दो में से एक एंगल आपको फाइंड करना पड़ेगा। मान लो आपने क्या किया कि 110 लिया, इसको आपने 70 लगा दिया, ये 70 आपने निकाल लिया। नाउ दिस 135 डिग्री इज एन एक्सटीरियर एंगल, तो 135 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री प्लस एंगल R। समझ आ गया सबको? 135 इक्वल्स टू 70 प्लस एंगल R। क्लियर? Yes, ma'am. सेकंड ऑप्शन, 135 आप 45 निकाल लो। दो तीन मेथड से कर सकते हैं बेटा, कोई एक फिक्स मेथड नहीं है। फर्स्ट मेथड क्या होगा जो मैंने आपको फर्स्ट टाइम बताया, ये निकाल लो, ये निकाल लो, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओ। सेकंड मेथड 110 यू फाइंड 70 डिग्री। अब 70 आपको मिल गया और अब आप एक्सटीरियर, सॉरी 70 नहीं का आपको ही निकालना पड़ेगा, 135 70 निकाल लिया। अब रुक जाओ, एक अलग से फिगर बना देती हूँ, वेट। ये हो गया आपका 70 डिग्री, 70 आपने निकाल लिया। नाउ दिस इज एन एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल किसके इक्वल होगा? ये वाला इंटीरियर आपको नहीं लेना, मैंने आपको हिंट दिया था, फिर से ध्यान से सुन लो। जिस वर्टेक्स में एक्सटीरियर बनता है वो वाला इंटीरियर नहीं लेते, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। तो दिस एंगल इक्वल्स टू दिस एंगल प्लस दिस एंगल, तो 135 डिग्री इक्वल्स टू 70 डिग्री प्लस जो भी एंगल R, ये फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है कि आप ये वाला एंगल निकाल लो। जब ये एंगल निकाल लेंगे तो ये एंगल आ जाएगा 45,
अब 45 हो गया। अब आप एक्सटीरियर एंगल ये वाला लगा दो, 110 एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल्स टू 45 डिग्री प्लस आर। इससे आपका फिर ये आर आ जाएगा। क्लियर हो गए सबको? कर लोगे? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ऐसे भी करो, आंसर सेम मिलेगा। ओके, म्यूट म्यूट म्यूट, तुरंत म्यूट कर लिया करो, तब अच्छे से क्लियर होगा, समझ में आएगा। ना दिस क्वेश्चन, अब इसको सिर्फ हिंट दे रही हूँ मैं, ध्यान से देखना। क्वेश्चन में क्या गिवन है आप रीड कर लेना, मैं आपको समझा रही हूँ क्या गिवन है। वन ट्रायंगल XYZ इज गिवन, नाउ YO एंड ZO, these two are the bisectors of angle Y and angle Z। यानी Y ये इस एंगल का और इस एंगल का बाइसेक्टर है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइसेक्टर? बाई मीन्स टू और सेक्टर मीन्स डिवाइड करने वाला। बाइसेक्टर मीन्स वो लाइन सेगमेंट जो किसी एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करे। सो YO विल डिवाइड दिस एंगल Y इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो 54 के टू इक्वल पार्ट्स कर दो तो कितने कितने हो जाएंगे? जल्दी बोलो। 27 27 हो गया। 27 27 जल्दी बोलो फास्ट। Yes, ma'am. हाँ, अब ध्यान से देखना। अब आपको निकालना क्या, पहले ये समझो। आपको निकालना इस क्वेश्चन में इस एंगल की वैल्यू निकालनी, एंगल YOZ। अच्छा, दो चीज निकालना, एक तो YOZ निकालना, YOZ एंड OZY। OZY आपको ये वाला एंगल YOZ और OZY निकालना। अब आप क्या क्या करोगे, मैं हिंट देती जा रही हूँ, सुनते जाना। सबसे पहले XYZ ट्रायंगल लेंगे, इसमें टू एंगल्स गिवन है। विच टू एंगल्स आर गिवन? एंगल X एंड एंगल Y। विद द हेल्प ऑफ दीज टू एंगल्स यू कैन फाइंड एंगल Z। कैन यू फाइंड एंगल Z? जल्दी बोलो फटाफट। Yes, ma'am. निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे? दिस प्लस एंगल Z इक्वल्स टू, ये देखो यहाँ लिखा है 62 प्लस 54 प्लस XZY इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल सम प्रॉपर्टी ब्रैकेट में लिखना है, ये लिखा हुआ है। फिर XZY की वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों को उस साइड शिफ्ट करेंगे। प्लस किया तो आ गया 116, 116 माइनस हो गया तो आ गया 64। सो दिस एंगल Z इक्वल्स टू 64 डिग्री। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. नाउ नेक्स्ट। ओके, अब ध्यान से देखना। अब ये दोनों इसके बाइसेक्टर हैं। YO इज ए बाइसेक्टर एंड ZO इज ए बाइसेक्टर। कि 54 टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, 27 27 एंड 64 डिग्री विल आल्सो बी डिवाइडेड इनटू टू इक्वल पार्ट्स, 32 32। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. अब आप सोचो, अब आप इस ट्रायंगल में आ जाओ, YOZ। इस ट्रायंगल में दिस एंगल इज जल्दी बोलो। 27 degree. 27। रुको रुको, इसको मैं थोड़ा सा स्क्रीन और नाउ अब सुनना अच्छे से, स्क्रीन दिख रहा होगा ना सबको? Yes, ma'am. Yes, ma'am. This angle is 27 and this angle is 32. 32। ओके, तो एक तो आपको मिल गया OZY आ गया 32। तो एक वैल्यू तो आपने फाइंड कर लिया, दिस वन। नाउ YOZ, अब बताने की जरूरत ही नहीं है। इन ट्रायंगल YOZ टू एंगल्स आर गिवन, यू कैन फाइंड थर्ड वन। क्लियर? Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, ma'am. कम टू थर्ड क्वेश्चन। इन फिगर AB पैरेलल टू, बेटा जिसको भी डाउट हो कैसा भी तुरंत अनम्यूट करके पूछना। अब वॉइस क्लियर ना हो, स्क्रीन विजिबल ना हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, यू कैन अनम्यूट। लेकिन ये नहीं कि हो गया देखेंगे बाद में, अरे हो गया नहीं समझ में, बाद में समझ लेंगे, वो बात कभी नहीं आने वाला, ये मैं बता दूं आपको। अभी है तो जस्ट अभी आप पूछ सकते हो। चलो, AB is parallel to DE. AB is parallel to DE. These two lines are parallel. अब ध्यान से देखना, जैसी पैरेलल का कॉन्सेप्ट आ जाए तुरंत याद करना मैंने क्या क्या प्रॉपर्टी बताई थी। AB एंड दिस इज DE, और यहाँ से एक लाइन गई है, ये वैसे यहाँ तक है लेकिन मैंने सपोज करी थी इसको एक्सटेंड कर दे, इसको भी मैं एक्सटेंड कर दूं, इसको भी इधर एक्सटेंड कर दे, ट्रांसवर्सल भी एक्सटेंड कर दे। ध्यान से देखना भी आप ये, तो ये दोनों एंगल्स, यानी आपका फिगर यदि ऐसा बन जाए और ये एंगल है आपका 35 डिग्री, ये एंगल कितने का हो जाएगा? 35 degree. विच प्रॉपर्टी? विच प्रॉपर्टी? Interior interior angles. यस यस। और मैंने आपको बहुत 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 अच्छा हिंट दिया था
वो जो हिंट दिया था वो हिंट आप अभी देखो, अप्लाई करके देखो। क्या हिंट दिया था मैंने आपको कि चाहे ऑल्टरनेट इंटीरियर हो, करस्पॉन्डिंग एंगल्स हो, को इंटीरियर एंगल्स हो, ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स, कोई भी एंगल हो, वो जो एंगल का आर्क वो किसको टच करना चाहिए? वन साइड टच करेगा लाइन को और दूसरी साइड टच करेगा ट्रांसवर्सल को, और ये ट्रांसवर्सल कॉमन होगा दूसरे एंगल के लिए। अब देखो मैं एरो आपको लगा के दिखा रही हूँ, कर्सर देखते जाओ, सेम ट्रांसवर्सल यहाँ पे आ गया। ये किसको टच कर रहा है? ट्रांसवर्सल, वही ट्रांसवर्सल है, ट्रांसवर्सल चेंज नहीं हुआ। और लाइन को, इसका आर्क देखो लाइन को टच कर रहा है, यहाँ देखो। और ये लाइन कौन सी लाइन है? वो लाइन है जो ए बी के पैरेलल है। तो ये दोनों एंगल्स इक्वल हो गए। क्लियर? Yes, ma'am. ये हो गया आपका 35, ऐसा कुछ बचा ही नहीं। अब फिर ट्रायंगल डी सी ई, टू एंगल्स आर गिवन, ये 35 हमने निकाल लिया। टू एंगल गिवन, यू कैन फाइंड थर्ड वन। आपको निकालना था डी सी ई, 2 सेकंड में निकल गया। सिंपल, जल्दी बोलो। Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ma'am. अच्छा, ओके, लेट मी चेक वन थिंग। अभी 3 क्वेश्चंस यदि सबको समझ में आ गया, राइट वाई इन चैट बॉक्स। इफ नॉट क्लियर, राइट एन। आई विल चेक वन बाय वन। पहले मैं चेक तो कर लो। वाई 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 वाई, रमीशा वाई, कार्तिक, रमीशा, अंश, ये प्रखर, श्रीवास्तव। टोटल स्टूडेंट्स है 25। मुझे 25 वाई चाहिए या फिर नो लिखो। अदिति साहू नो, ये ऋषभ से नो। चलो अभी मैं काउंट करूँ पहले 25 है या नहीं। आप लोग सुन भी रहे हो कि नहीं सुन रहे, मुझे ये भी देखना है। 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 रमीशा तक 6 हो गया। देन 7 8 9 10 राघव, 10 11 12 13 14। अभी तो 14 15 का ही रिस्पॉन्स आया है। व्हाट अबाउट अदर्स? बाकी सुन नहीं रहे। नव्या जैन नो, या चल नव्या जैन यस, ओके। पवन धाकड़ नो, संजय धाकड़ नो, अदिति साहू नो, हर्ष मोदी यस। अभी भी सारे 25 रिस्पॉन्सेज नहीं आए। इसका मतलब ये हो कि सब लोग आप ध्यान से सुनते नहीं, तो कंफर्म है। वही 15 16 पढ़ रहे हो और वही 15 16 पास भी हो गए 9th क्लास, ये भी बता दूं मैं। अच्छा एक काम करो, रुको, पता चला हम पढ़ाई पढ़े, सब लोग एक एक करके अनम्यूट करके मुझे साईं राम बोलो। मैं चेक तो करूं पहले सारे, वेट करो, रुको। जिसको मैं कहती नहीं, ऐसे नहीं, नो, बिल्कुल नहीं। सबसे अदिति साहू से साईं राम। अदिति, Saira ma'am. अंश, Saira ma'am. हाँ, आर्ची, Saira ma'am. ओके, आयुषी, Saira ma'am. चित्रांशी, Saira ma'am. दामिनी, Saira ma'am. ध्रुव, Saira ma'am. एकता, फास्ट फास्ट, एकता, Saira ma'am. हरीश, Saira ma'am. हर्ष, Saira ma'am. कार्तिक, Saira ma'am. किंजल, Saira ma'am. किंजल साहू, Saira ma'am. नाव्या, Saira ma'am. पवन, Saira ma'am. प्रखर, Saira ma'am. पुष्कर, सायराम मैम। राघव, Saira ma'am. ऋषभ, Saira ma'am. रिया, Saira ma'am. रमीशा, Saira ma'am. साफिया, Saira ma'am. संजय, Saira ma'am. सृष्टि। Saira ma'am. ओके, अब जितने सबको समझ में आ गया? जिसको नहीं समझ में आया जल्दी पूछो फटाफट, फास्ट। 3 यन छोड़ के बाकी सबको आ गया। चलो गुड। नाउ ओके, इज स्क्रीन विजिबल? Yes ma'am. हाँ, ध्यान से Yes, ma'am. जिसने नो लिखा उसके लिए फिर से समझा रहे हैं, ध्यान से देखो। अब उनसे फिर से पूछूंगी मैं क्वेश्चन, अभी सेम टाइप का। ए बी इज पैरेलल टू डी ई, दीज टू लाइंस आर पैरेलल, ध्यान से देखना, एंड दिस इज अ ट्रांसवर्सल। जब भी दो पैरेलल
पैरेलल लाइंस को या किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस को कोई लाइन कट करती है, तो जो लाइन कट करती है उसको ट्रांसवर्सल बोलते हैं. सो AE इज अ ट्रांसवर्सल फॉर AB एंड DE. अब यदि ट्रांसवर्सल है तो आपको यदि आप एक्सटेंड करेंगे तो ये फिगर आपको मिलेगा, दिस वन. ऐसा फिगर दिखेगा सबको. अब मैंने आपको बहुत अच्छा हिंट दिया था, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, लाइन के इनसाइड, लाइन के अंदर की तरफ जो चार एंगल बनते हैं, इन एंगल्स को बोलते हैं इंटीरियर एंगल्स. और ये जो आउटसाइड बनते हैं 1 2 3 4, दीज आर नोन एज एक्सटीरियर एंगल्स. 4 इंटीरियर 4 एक्सटीरियर. यदि इंटीरियर एंगल्स को हम क्रॉस में ले लें, यानी क्रॉस मीन्स ये और इसके जस्ट अपोजिट में, तो ये है फर्स्ट पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर, एंड दिस एंगल एंड दिस एंगल सेकंड पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर. अब आप सोचो, ये इंटीरियर एंगल है और ये भी इंटीरियर एंगल है. यदि आप इसको एक्सटेंड कर दोगे तो ऐसे ही फिगर मिल जाएगा जो मैंने यहाँ बनाया था. तो दीज टू एंगल्स विल बी इक्वल बिकॉज दे आर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स. यहाँ तक समझ में आ गया? जिसने नो लिखा था जल्दी बोलो, फास्ट. Yes, ma'am. अब ये 35 है तो ये हो गया 35. Now you have to take triangle DCE. In triangle DCE, two angles are given. Given तो नहीं है, one is given और एक आपने find कर लिया. So 53 and 35 डिग्री, आपको दो एंगल्स मिल गए. You can find third one. अब ये तो मुझे नहीं बताने की जरूरत है कि how can you find third one. मालूम है सबको? Yes, ma'am. हाँ Yes, ऋषभ थर्ड एंगल कैसे फाइंड करते हैं? क्या रूल है? जल्दी बोलो ऋषभ. मैम ये डी और ई को प्लस करेंगे और 180 से माइनस कर देंगे. वेरी गुड, बिल्कुल सही. नाउ कम टू नेक्स्ट क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन. फोर्थ तो इतना सिंपल है कि मुझे थोड़ा बताने में भी अच्छा नहीं लग रहा है 9th क्लास के बच्चे. मैम आई हैव डाउट इन सेकंड क्वेश्चन. वेरी गुड. किसको डाउट है? आई हैव डाउट इन सेकंड क्वेश्चन. मैम ऋषभ. हाँ अभी तक सो रहा था बेटा. मैम लिखा था आपने. अच्छा, तेरी आवाज इतनी धीरे तो नहीं है कि मुझे सुनाई ना दे. हाँ चल देख ले फिर से. सेकंड क्वेश्चन में XYZ ये एक ट्रायंगल है. इन ट्रायंगल XYZ टू एंगल्स आर गिवन. रुको पहले इसको मैं इरेज कर दूं. जब उस क्वेश्चन का टर्न आए तुरंत बोला करो मैम क्लियर नहीं, तुरंत पूछो. चलो, तो two angles are given. One is 62 degree and second one is 54 degree. Now two angles are given. You can find third one. Which third one? Angle XZY. So you can find this angle. फिर वही इन दोनों को प्लस कर देंगे. 54 ये पूरा एंगल, ध्यान रखना. इन दोनों को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो Z आ गया. ये आ गया हमारा 64. ये आ गया 64 डिग्री. अब आपको क्वेश्चन में गिवन है कि YO एंड ZO दीज टू आर दी बाइसेक्टर्स. यानी 54 डिग्री को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और 64 को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे. यदि कौन डिवाइड करेगा? YO. किसको डिवाइड करेगा? Y को. कितने इक्वल पार्ट्स में? 2. तो ये 54 यदि पूरा एंगल तो हो जाएगा 27 और 27. ये हो जाएगा 32 32. अब आपको इस ट्रायंगल में YOZ, ये एक ट्रायंगल, आपको एक ट्रायंगल ये भी दिख रहा होगा, ये भी एक ट्रायंगल है. एक XYZ ट्रायंगल, एक YOZ ट्रायंगल. अब YOZ में अप्लाई करना एंगल सम प्रॉपर्टी, बिकॉज दिस एंगल इज 27, दिस एंगल इज 32. यू कैन फाइंड थर्ड एंगल. आ गया? यस मैम. अभी भी नहीं आया तभी भी पूछ सकते हो. जब उस क्वेश्चन का टर्न हो यू कैन आस्क इनफाइनाइट नंबर ऑफ टाइम्स, नो प्रॉब्लम. बट ये नहीं कि समझ में आ गया यस मैम, और फिर 10 मिनट के बाद बोलते मैम नहीं समझ में आया. बिल्कुल नहीं बताऊंगी. अभी भी किसी को डाउट हो यू कैन आस्क. नो डाउट. अब ये बोल दो नो डाउट तो बोल दो यस मैम नो डाउट. यस मैम. चलो, नाउ कम टू फोर्थ क्वेश्चन. सो सिंपल क्वेश्चन. अब आपको क्लियर दिख रहा होगा PRT. यू कैन फाइंड विच एंगल, जल्दी बोलो. विच एंगल? Angle T. एक चीज और ध्यान से सुन ले बेटा, इसको एंगल T नहीं बोलोगे, आपको फुल नेमिंग देना है. हाँ, Angle PTR. सबसे बेस्ट है कि आप 3 अल्फाबेट्स में लो. 3 वर्टेक्स में ट्रायंगल की नेमिंग तो सबसे बेस्ट है. और जिस एंगल को रीड करते हैं उसको सेंटर पे रखते हैं. हम T को रीड करेंगे तो इसको लिखेंगे एंगल PTR और एंगल RTP. बोथ आर करेक्ट, बट T को सेंटर में रखो.
Angle T you can find. Now this angle equals to this angle. Which concept? Vertically opposite बस angle. ठीक है, vertically opposite. Now TSQ, you take this second triangle. Two angles are given. You can find third. Clear? Yes, ma'am. देखो सबसे पहले ये फाइंड करेंगे नंबर 1, इसके बाद ये फाइंड करेंगे नंबर 2, इसके बाद ये फाइंड करेंगे नंबर 3, ये फाइंड करेंगे एंगल सम प्रॉपर्टी, ये फाइंड करेंगे वर्टिकली अपोजिट, एंड वी हैव टू फाइंड दिस अगेन बाय एंगल सम प्रॉपर्टी. आप किसी को डाउट हो यू कैन आस्क फास्ट, जल्दी बोलो. है किसी को डाउट? No, ma'am. चलो नाउ कम टू फिफ्थ क्वेश्चन. अब ध्यान से देखना फिफ्थ क्वेश्चन, ये भी सिंपल ही है. PQ परपेंडिकुलर टू PS, PQ परपेंडिकुलर टू PS, यानी एक्चुअली में होना चाहिए SP परपेंडिकुलर टू PQ होना चाहिए. PQ परपेंडिकुलर टू PS, वैसे देखा जाए तो चलेगा दोनों, जब दो के बीच में 90 डिग्री बने आप दोनों साइड से कर सकते, दिस परपेंडिकुलर टू दिस और दिस परपेंडिकुलर टू दिस, बोथ आर करेक्ट, चलेगा. तो SP परपेंडिकुलर टू PQ और PQ परपेंडिकुलर टू PS एक ही बात है, कैसे भी लिख सकते. ओके, सो दिस एंगल इज ऑफ 90 एंड PQ पैरेलल टू SR. PQ ध्यान से देखते जाना, रुको मैं इसको थोड़ा जूम करती हूँ. ओके, अब अच्छे से क्लियर दिख रहा है सबको? Yes, ma'am. Ma'am. इसलिए मैंने इसको और अच्छे से जूम कर दिया, फुल, चलो फुल जूम हो गया. हाँ, तो ये एंगल है आपका 90 डिग्री एंड दिस PQ इज पैरेलल टू SR. आप फिर खूब अच्छे समझ रहे हो जो मैं समझा रही हूँ. फिर वही कॉन्सेप्ट, ये पैरेलल है एंड QR ट्रांसवर्सल होगा, दिस इज अ ट्रांसवर्सल. यदि इसको मैं एक्सटेंड कर दूं थोड़ा सा, अब इसको एक्सटेंड कर देंगे तो अब आप समझो ये फुल एंगल इस फुल एंगल के इक्वल होगा, करेक्ट? Yes, ma'am. Yes, ma'am. मैंने आपको ट्रिक बताई थी, वो ट्रिक यहाँ कितनी बढ़िया काम आ रही है. क्या बताया था मैंने आपको? आर्क जो होगा एक साइड टच करेगा ट्रांसवर्सल और सेकंड साइड लाइन, देखो लाइन को टच कर रहा है. अब ये एंगल इस एंगल के इक्वल क्यों लेंगे? क्योंकि ये लाइन को टच कर रहा है और ट्रांसवर्सल को टच कर रहा है. क्लियर? जल्दी बोलो. Yes, ma'am. इसका मतलब क्या मिल गया आपको? x प्लस 28 इज इक्वल्स टू 65. करेक्ट और नॉट? जल्दी बोलो. Yes, ma'am. यू कैन फाइंड x आपको मिल गया 65 माइनस 28, जो भी होगा आपको x मिल गया. इतना समझ आ गया सबको? जल्दी बोलो फास्ट. Yes, ma'am. आपने x की वैल्यू फाइंड कर लिया. अब आप देखना, नेक्स्ट यू हैव टू टेक ट्रायंगल PSQ. ये ट्रायंगल लेना PSQ. दिख रहा है सबको ट्रायंगल? इसको रेड कलर. Yes, ma'am. दिस रेड वन, ये रेड ट्रायंगल आपको लेना. इन दिस ट्रायंगल वन एंगल इज गिवन 90 डिग्री. x जस्ट आपने अभी फाइंड किया है. यू कैन फाइंड y. कर सकते हो y फाइंड? जल्दी बोलो. Yes, ma'am. सिंपल हो गया, आंसर आ गया, कुछ है ही नहीं. किसी को डाउट? जल्दी बोलो. एनीवन, एनी डाउट? No, ma'am. No, ma'am. ठीक है, चलो नहीं है तो गुड. नाउ कम टू दिस लास्ट क्वेश्चन. इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इसको थोड़ा सा मैं कम कर दूं, फिर बाद में जूम कर दूंगी. हाँ, ये थोड़ा टिपिकल, ज्यादा नहीं बट थोड़ा सभी से थोड़ा टिपिकल है. अब इसका पहले फिगर ध्यान से समझो. इन फिगर द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQ. इसका फिगर आपको खुद बनाना, भूल जाओ कि फिगर आपको गिवन है. मैं आपको बना के दिखा रही हूँ कैसे बनाएंगे. द साइड QR ऑफ ट्रायंगल PQR, यानी आप पहले एक ट्रायंगल बना लो PQR. साइड QR इज प्रोड्यूस्ड. QR मीन्स फ्रॉम Q टू R, यानी इस डायरेक्शन में इसको प्रोड्यूस किया. टू पॉइंट S, किस पॉइंट तक? S तक. इफ द बाइसेक्टर्स ऑफ PQR का बाइसेक्टर, लेट मी चेंज कलर, इसका बाइसेक्टर of PQR एंड PRS.
अगेन चेंज कलर। PRS मीन्स ये वाले एंगल, ये जो एंगल आपको दिख रहा है इस एंगल का 2 इक्वल पार्ट्स करना है आपको, यानी कुल मिला के कुछ ऐसी जाएगी लाइन। और जब ब्लू ले लेंगे तो ये लाइन ऐसी गई। दे इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट T, दोनों T पॉइंट पे मीट करेंगे। देन प्रूव दैट एंगल QTR मीन्स दिस एंगल is equal to half of QPR. QPR means this angle, यानी ये वाला एंगल इस एंगल का हाफ होगा। यदि ये 60 होगा तो ये 30 होगा। इफ दिस इज 50, दिस इज 25। ये ग्रेटर है P वाला, ये स्मॉल है, ये इसका हाफ है। अब आप कोई फिगर में डाउट हो तो पहले पूछो जल्दी फटाफट, फास्ट। है डाउट? यस और नो? फिगर क्लियर है सबको? यस मैम। अब आप ध्यान देखना। अब इसमें सभी PQR TQR, आप बेस्ट आप इसको 1 2 3 4 ले लो, सबसे बेस्ट है। हम क्या करेंगे, इस जो ये इसका बाइसेक्टर था, एक को मैंने ले लिया यहाँ पर, चलो 1, इसको ले लिया 2, यानी जो PRS 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था तो 1 और 2 ले लिया। और जो PQR it is divided into 2 equal parts and we take these 2 equal parts as 3 and 4। ये मैंने यहाँ पे नेमिंग कर रखी थी आपको समझाने के लिए। ये 1 2 3 4 ये ले लिया। P को और T को वैसे ही रहने दिया, क्योंकि आपको फाइनल आंसर में QPR और QTR चाहिए, इसलिए इसको मैंने वही रहने दिया। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आ गया? Yes, ma'am. अब आपको एक हिंट देती हूँ, ध्यान देखना इस क्वेश्चन की, बहुत बढ़िया हिंट है। हिंट ये है कि आपको सिर्फ 2 ट्रायंगल में एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी लगानी है, 2 ट्रायंगल्स में। वो कौन से 2 ट्रायंगल्स है, हिंट देखते जाना। जब ये क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो हिंट याद रहेगी तो बहुत इजी है सॉल्व करना। किन 2 ट्रायंगल्स में लगाना है? इन दोनों ट्रायंगल्स में जिनके पार्ट्स ये हैं, यानी उस ट्रायंगल में लगाना है जिसमें QTR आ रहा है। QTR किस ट्रायंगल में आ रहा है, जल्दी बोलो। QTR is an angle of which triangle? Angle QTR. Yes, angle Q। म्यूट बेटा, तेरी वॉइस में इको हो रहा है, म्यूट करो। QTR जो एंगल है, इट इज अ पार्ट, इट इज एन एंगल ऑफ ट्रायंगल QTR। QTR का एंगल होगा और QPR एंगल ट्रायंगल QPR का एंगल होगा, सीधी सी बात है। तो एक QTR में QTR इस ट्रायंगल में अप्लाई करना है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, एंड नेक्स्ट यू हैव टू अप्लाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल QPR, यानी ये वाला ट्रायंगल, ये रेड वाले में अप्लाई करना है आपको एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, और ये ब्लू और ग्रीन वाले। हाँ यस बेटा। मैम कैन यू एक्सप्लेन अगेन? हाँ ध्यान से सुनो, ये फिगर क्लियर हो गया सबको? यस मैम। Yes, ma'am. आपको क्या करना है, आपको रिलेशन क्या निकालना है कि फाइनली दिस इक्वल्स टू हाफ ऑफ दिस, ये आंसर आना चाहिए। अब आप क्या करोगे, QTR ट्रायंगल में अप्लाई कर दो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। QTR कौन सा ट्रायंगल है, ये देखो इधर QTR, ब्लू ग्रीन और रेड जो तीनों का कॉम्बिनेशन, इसमें अप्लाई करो एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या रिजल्ट मिलेगा? इस ट्रायंगल के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? एंगल 1। सबको समझ में आ रहा है एंगल 1 क्यों है, जल्दी बोलो। ये देखो मैं आपको फिगर बना के दिखा रही हूँ। ये पॉइंट है आपका T, ये पॉइंट है आपका Q। ये लाइन थोड़ा ऐसी आ रही है बट मैं लोकेशन समझा रही हूँ। ये मान लो QTR ट्रायंगल हो तो एक्सटीरियर एंगल कौन सा होगा? TRS। RS आपको समझ में क्लियर? यस मैम। Yes, ma'am. TRS को मैंने क्या नेमिंग दे दिया? 1। तो एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 3। ये वाला एंगल चेक कर लो, ये एंगल इतना सा एंगल 3 है, 3 प्लस एंगल T। तो ये मैंने फर्स्ट इक्वेशन लिख दिया यहाँ पे, फर्स्ट इक्वेशन। चलो बाकी सब मैं रख करती हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। सो फर्स्ट इक्वेशन इज एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल T प्लस एंगल 3। इतना क्लियर हो गया? जल्दी बोलो फास्ट। ये क्वेश्चन क्लियर यस है? मैम। नेक्स्ट यू हैव टू अप्लाई एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी इन ट्रायंगल QPR। ये जो 2 एंगल लिखा है इन्हीं दोनों ट्रायंगल्स में अप्लाई करना। QPR चेक करो कौन सा, ये रेड वाला, रेड वन।
अब रेड वन के लिए एक्सटीरियर एंगल कौन सा है? PRS है। PRS जल्दी बोलो, PRS। Yes, क्लियर? Yes, ma'am. PRS किसके इक्वल है? 1+2 के इक्वल है। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल है PRS के। तो सेकंड इक्वेशन मैंने ये अप्लाई कर दिया, एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल्स टू, ये देखो मैं यदि अलग से फिगर बनाती हूँ तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। ये है P, दिस इज Q, दिस इज R, ये मैंने एक्सटेंड किया, ये एक्सटीरियर एंगल, और ये एक्सटीरियर एंगल इक्वल है 1+2, दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा था क्योंकि इसको बाइसेक्ट कर दिया था किसी साइड में, तो 1+2 है एक्सटीरियर, ये पूरा सिंगल एंगल मान लो, दिस इज अ सिंगल एंगल, ये एक्सटीरियर एंगल एक्चुअली, इसको ब्रैकेट भी लगा सकते हो। ये इक्वल होगा किसके? एंगल P प्लस एंगल Q के, और Q कितने पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है? 2 पार्ट्स में, 3 + 4, सो दिस इज सेकंड इक्वेशन। ये वाली इक्वेशन सबको समझ में आ गई? जल्दी बोलो। your voice is not clear. क्लियर और नॉट? Ma'am, clear. चलो, तो ये है 1+2 इक्वल्स टू एंगल P प्लस एंगल 3+4। 3+4 को मैंने ब्रैकेट में रखा। क्यों रखा ब्रैकेट में? क्योंकि जो एंगल Q है ये दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, 3 और 4, इसलिए मैंने इसको ब्रैकेट कर दिया। क्लियर? अब आप ध्यान से देखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप दिस वन। अब ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, 1 और 2 आर इक्वल, करेक्ट और नॉट? जल्दी बोलो, दोनों इक्वल है 1 और 2? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. बिकॉज इट इज अ बाइसेक्टर। सिमिलरली 3 और 4 इक्वल है, हाई इक्वल। Yes, Yes, ma'am. ma'am. अब Yes, आपको ma'am. अब आपको हिंट दे रही हूँ, ध्यान से देखना। हिंट ये है कि आप यदि 1 और 2 इक्वल है तो 1 को 2 लिख सकते हो, 2 को 1 लिख सकते हो, क्योंकि दोनों इक्वल एक दूसरे की प्लेस में लिख सकते हो। लेकिन हम 2 को 1 लिखेंगे। क्यों लिखेंगे? कि फर्स्ट इक्वेशन में हमारे पास 1 और 3 है, तो हमें इस पूरे इक्वेशन को 1 और 3 में कन्वर्ट करना। तो 1 और 3 में कन्वर्ट करने के लिए एंगल 2 की जगह लिख देंगे एंगल 1, और एंगल 1 प्लस एंगल 1 इक्वल हो जाएगा 2 एंगल 1 के, क्योंकि x प्लस x इक्वल होता है 2x के। वेरिएबल है, वेरिएबल इसके साथ जो नंबर होते हैं वो प्लस हो जाते हैं, इसके साथ 1 है और इसके साथ भी 1 है, तो एंगल 1 प्लस एंगल 1 हो जाएगा 2 एंगल 1। सबको समझ में आ गया 2 एंगल 1 कैसे आ गया? जल्दी बोलो। Yes, ma'am. एंगल P वैसे ही रहने दिया। अब यहाँ हमें 3 से मतलब है, क्योंकि फर्स्ट इक्वेशन में 1 और 3 है, हमारे पास 2 और 4 नहीं है, तो 2 और 4 नहीं लिखेंगे, 1 और 3 लिखेंगे। तो अब हम क्या करेंगे? 4 को 3 लिख सकते हैं, क्योंकि ये दोनों एंगल्स भी आपस में क्या है? इक्वल है। कौन से? 3 और 4 इक्वल है। इन प्लेस ऑफ एंगल 4 यू कैन राइट एंगल 3, तो हमने इस 4 की जगह लिख दिया एंगल 3। एंगल 3 हो गया 2 एंगल 3। क्लियर और नॉट? Yes, ma'am. बस, अब कुछ नहीं किया, अब ये हो गया हमारा। अब हम क्या करेंगे? फर्स्ट इक्वेशन से, ये फर्स्ट इक्वेशन, इसमें से एंगल 1 की वैल्यू t+3 यहाँ पे पुट कर दिया मैंने। 1 की जगह क्या पुट कर दिया मैंने? ये पुट कर दिया एंगल 1 एंगल t प्लस एंगल 3। कहाँ से आ गया ये? फ्रॉम इक्वेशन 1, यहाँ से पुट कर दिया। अब जब पुट कर देंगे तो 2 दोनों से मल्टीप्लाई होगा, तो क्या रिजल्ट मिल जाएगा? 2 एंगल t प्लस 2 एंगल 3 इज इक्वल्स टू एंगल P प्लस 2 एंगल 3। 2 एंगल 3 कैंसिल, क्योंकि यदि कोई टर्म LHS और RHS में दोनों साइड हो विथ सेम साइन तो वो कैंसिल हो जाती है, क्योंकि इधर आके माइनस हो जाएगा तो भी कैंसिल हो जाएगी। तो आपको फाइनली क्या मिल गया? एंगल T इक्वल्स टू, ये 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल P। बस आप लोग जो T लिखा है T न लिख करके इसको आप फुल नेमिंग कर लेना। क्या फुल नेमिंग है? एंगल QTR। तो T जहां जहां T लिखा है वहां वहां एंगल QTR कर देना। तो एंगल QTR इक्वल्स टू हाफ ऑफ, और इस QPR यानी P मतलब QPR। तो कुल मिला के शॉर्ट में क्या किया? फिर से देखो, इस ट्रायंगल में अप्लाई किया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, PQR में अप्लाई किया एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। एक इक्वेशन ये मिल गई, एक इक्वेशन ये मिल गई। हमें 1 से मतलब है तो 2 एंगल 1 हो गया, 3 से मतलब है 2 एंगल 3 हो गया। फर्स्ट इक्वेशन से एंगल 1 की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दिया, आपको रिजल्ट मिल गया। क्लियर? Yes, ma'am. अब आप क्या करना, एक चीज और सुन लो, क्लियर तो अभी हो गया, लेकिन यदि आज आप रिवाइज नहीं करोगे सब भूल जाएगा, खासकर लास्ट वाला क्वेश्चन। जैसे ही 5 o'clock आपकी क्लास खत्म हो तुरंत इस क्वेश्चन को सॉल्व करना।
करेक्ट? Yes, ma'am. तुरंत सॉल्व करना, वेट नहीं करना बेटा, बिल्कुल सॉल्व कर लेना जैसे मैंने बताया था 1 2 3 लेके। अदरवाइज आर.डी. शर्मा में बाकी बुक्स में इसको बहुत लेंदी मेथड से सॉल्व किया, इसका कोई मतलब नहीं है। क्लियर? Yes, चलो ma'am. चलो, आपकी ऑलरेडी मैंने 10 मिनट्स एक्स्ट्रा ले लिया है, एग्जैक्टली ज्यादा ले, चलो कोई बात नहीं बेटा, अच्छा एक्स्ट्रा पढ़ लो, कम नहीं पढ़ो। साईराम, लीव 1 by 1। सारा मैम। साईराम, थैंक यू मैम। Saira, ma'am. लोग साईराम, Saira, ma'am. Sarah ma'am. साईराम बेटा, Sarah ma'am. Thank you ma'am. साईराम बेटा, साईराम। मैम यस बेटा। मैम मैंने वो